एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो डियर स्टूडेंट्स, we are going to start our chapter electricity, class 10th CBSE. So I will cover each and every concept of this chapter. The first term of this chapter is current. The symbol of electric current is I. The symbol of electric current is I, and the formula for I is Q divided by T. एंड फिज़िक्स में जिस भी फार्मूला में डिवाइडेड बाय टी होता है उसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है रेट ऑफ दिस क्यू रिप्रेजेंट चार्ज. सो डेफिनेशन विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. So in physics, each and every definition starts with rate. If the formula in denominator we are having time, if in the formula we are having time in the denominator, then the definition in physics will start from rate. Rate of flow of charge is called electric current. And the symbol of charge is Q. So now the SI unit of current is ampere. SI unit of current is ampere. So in the paper normally it is asked define 1 ampere. The SI unit of current is ampere. So how will you define 1 ampere? आप फॉर्मूला में ही देखेंगे. फॉर्मूला में आपने अप्लाई करा I is equal to Q over T. The SI unit of I is ampere, SI unit of charge is coulomb, and SI unit of time is second. Definition यहीं से derive हो रही है. Current is said to be 1 ampere if the charge of 1 coulomb passes through conductor in a time period of 1 second. So फॉर्मूला से ही डेफिनेशन हमने डिराइव करी है. रट्टा मारेंगे मुश्किल में आएंगे. समझ के करें. मीन्स सिंबल ऑफ करंट इज आई, symbol of charge is Q, symbol of time is T. The SI unit of current I told you is ampere, so I have written here 1 ampere. The SI unit of charge I told you is 1 coulomb and the time is second. So the current is said to be 1 ampere if the charge of 1 coulomb passes through conductor in a time period of 1 second. So the first topic, electric current. Now our second topic of this chapter is electric potential. So now we are going to discuss what is electric potential. So electric current we have discussed. Now electric, the term comes of electric potential. So flow of charge is called current and electric potential is what? The work done in moving electric charge फ्रॉम 1 पॉइंट टू इन्फिनिटी. मीन्स चार्ज का फ्लो करना इस करंट, एंड ये चार्ज एक जगह से लेके एक इन्फिनाइट जगह तक जा रहा है. उसके दौरान जो वर्क डन हुआ दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो वर्क डन इन मूविंग 1 unit charge from 1 point to infinity is called electric potential. Work done in moving unit charge from 1 point to infinity is called electric potential. So एक जगह से लेके मीन्स हमारे को उसका एंड नहीं पता कहाँ पे लेके जा रहे हैं. तो चार्ज को मूव करने के दौरान जो वर्क डन होगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल, ये तो अकेला पोटेंशियल हो गया. एक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारे को पता है कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को इस पॉइंट से लेके
इस पॉइंट बी तक लेके जाना है। तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक दोनों की पोजीशन डिफाइंड है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सो अभी हमने दो टॉपिक्स डिस्कस करे, इलेक्ट्रिक करंट, एंड दूसरा टॉपिक क्या डिस्कस करा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट इन शॉर्ट क्या था, आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फॉर्मूला इज q upon t. q is charge, time is t, and electric potential symbol is v, and the formula of potential difference is work done upon time. So no, it's work done upon q. q means charge. Work done in moving unit charge from one point to another, that is called potential difference, and work done in moving unit charge from one point to infinity, that is called electric potential. So we are having now two formulas, I is equal to q upon t. Q is charge, T is time, V potential difference is equal to W upon Q, work done upon charge. So these are the two formulas that you have to remember by heart. So now we are moving with our next topic. You have in first formula we have done I is equal to Q upon T. The formula of Q is charge and its formula is N into E. N means number of electrons. E means charge on one electron. Charge on one electron is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Remember, I का फॉर्मूला आप सभी ने करा Q अपॉन T. द फॉर्मूला ऑफ Q इज N into E. N is number of electrons, E is charge on one electron, and the charge on one electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19. And ज़्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a charge of 1 coulomb. Find number of electrons in charge of 1 coulomb. The spelling of coulomb ध्यान से देखना. So you know the formula of charge is N into E. N is given to you in the question 1. N is given to you in the question 1. You have to find number of electrons, and the charge on one electron is fixed, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. यहाँ पे minus 1.6 भी लिखा क्योंकि charge on electron is always negative. So in the next step we will do calculation. ये यहाँ पे चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके ये चीज़ क्या आ जाएगी, डिवाइड. सो 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n. आफ्टर दैट ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाय माइनस 1.6 इज इक्वल टू n. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, मीन्स हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 19 अपॉन माइनस 1.6. ये माइनस पॉइंट डेसिमल हटेगा, ऊपर 10 आएगा. सो n इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 20 अपॉन माइनस 16. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस में नहीं हो सकते हैं, तो हम माइनस के साइन को इग्नोर कर देंगे. कभी आपने देखा कोई चीज़ माइनस में चले जाए, नहीं, ऐसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस में नहीं हो सकते हैं. बच्चों को ये कैलकुलेशंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले तो हमने माइनस का साइन हटा दिया. 10 रेज़ टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 16. अच्छा, अब 10 रेज़ टू पावर 20 को 16 से डिवाइड करने की बजाय बेटर ही है कि 100 लिखे डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18. बात तो वही है. सो अब 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा, ये देखिए मैं डिवाइड भी करके दिखा रहा हूँ. 100 डिवाइडेड बाय 16 इज 16 6 96, देन 4 डेसिमल लगाया और 16 2 ज़ा 32, 8 16 5 ज़ा 80. सो 6.25 आया
यहाँ पे तो मेरे पास इसको डिवाइड करके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ये बच्चों को कैलकुलेशंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से एक बारी क्विक रिव्यू देख ले। पेपर में क्वेश्चन ये जनरली पूछ लिया जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चार्ज ऑफ 1 कूलम। मीन्स चार्ज का फॉर्मूला Q is equal to Ne. Q is the symbol of charge, N means number of electrons, and E means the charge on one electron. The charge on one electron is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19. अब ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई या उधर जाके डिवाइड हो रही है, ये 10 रेज टू पावर माइनस 19 ऊपर जाके 10 रेज टू पावर प्लस 19 हो गया, और यहाँ पे नीचे माइनस 1.6 है। अब मैंने आपको बोला कि डेसिमल हटाया, ऊपर 10 आ गया, मेरे पास आ गया 10 रेज टू पावर 20 अपॉन माइनस 16। कभी आपने कभी सुना कोई चीज़ नेगेटिव में, कोई नंबर नेगेटिव में, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये मैंने माइनस का साइन इग्नोर कर दिया, तो 10 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 16 आया। अब हमारी कैलकुलेशंस कितनी मुश्किल हो जाए, पर हम इसको इजी कर सकते हैं। 10 रेज टू पावर 20 को कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 10 रेज टू पावर 18, फिर 100 को 16 से डिवाइड करा, जो मैंने इधर करके दिखाया 6.25 आया, इंटू 10 रेज टू पावर 18। सो आप ये दिमाग में बिठा लें कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो अभी हमने एट प्रेजेंट 2 फॉर्मूलाज करे, I इज इक्वल टू 2 नहीं 3 कर लिए, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, फिर Q इज इक्वल टू Ne, फिर पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज, एंड हमने पढ़ा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। सो ये चीज़ याद रखना। अब हम अगला टॉपिक आ रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो रेजिस्टेंस को ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस इज रुकावट। मीन्स किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, मीन्स किसी चीज़ को विद्रोह करना, दैट इज़ रेजिस्टेंस। ऐसे ही करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब करंट हमारे को पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स जौन सा करंट है, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, मीन्स करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। और प्रोटॉन्स जो उनसे किसी भी कंडक्टर में अपनी जगह पे क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। प्रोटॉन्स की जगह अपनी फिक्स्ड रहती है, मीन्स ये यहाँ पे फिक्स्ड है। मीन्स मूविंग कौन होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे रास्ते में, इनकी टक्कर होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो टक्कर किसके साथ होगी, प्रोटॉन्स के साथ। ये कंडक्टर है, और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो प्रोटॉन्स अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, मूव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इनके रास्ते में टक्कर होगी, ये जो सी टक्कर प्रोटॉन्स के कारण होगी, तो ये जो सी रास्ते में रुकावट कौन क्रिएट कर रहा है, ये प्रोटॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स के कारण रुकावट आ रही है, और इस फिनोमिना को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। Obstruction offered to the flow of current is called resistance. The SI unit of resistance is ohm. रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम है, जिसका सिंबल ये ओमेगा भी है, और इसको प्रोनाउंस इसको हम बोल सकते हैं ओम, OHM ओम। तो अब हमारा रेजिस्टेंस टॉपिक भी हो गया। अब जैसे हमने पढ़ा था डिफाइन 1 एम्पेयर, एग्ज़ाम में आ जाता है डिफाइन 1 ओम, बट वो डेफिनेशन आपको ओम्स लॉ के बाद समझ आएगी, वो वाली डेफिनेशन आप ओम्स लॉ के बाद समझेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, सबसे पहले रुकावट किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर।
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी लंबा कंडक्टर होगा ना उतनी ही टक्कर होगी, उतनी रुकावट होगी। तुम खुद सोचो, अगर सपोज क्लासरूम में तुम बैठे हो, क्लासरूम की लेंथ बहुत लंबी हो जाए और हमने कई बच्चे सीट्स पे बिठाए हुए हैं और हम दूसरे सेक्शन के बच्चों को कहीं भागो, तो जब वो भागेंगे तो मीन्स अगर क्लासरूम लंबी होगी तो टक्कर ज़्यादा होगी। ऐसे ही प्रोटॉन्स एक जगह पे फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जितनी मीन्स जितना लंबा कंडक्टर होगा ना उतनी ही रास्ते में रुकावट ज़्यादा आएगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मीन्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी मीन्स लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर अगला पॉइंट है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। लेंथ मीन्स लंबाई थी हमारी, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी कंडक्टर की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। एरिया मीन्स ये जैसे ये एक कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर ऐसा है, दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है यहाँ पे, और जितना ज़्यादा एरिया होगा ना उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, मीन्स जब भी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में लिख देते हैं उसको। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया मीन्स अगर एरिया ज़्यादा होगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये अपने दिमाग में बिठा लें। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस डिपेंड कर दी है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे। मीन्स थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा मींस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होंगे, मींस उनकी ज़्यादा टक्कर होगी प्रोटॉन से। सो मींस टेम्परेचर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मींस अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस भी कम होगी। मीन्स क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है, जितनी वो तेज़ी से फ्लो करेंगे मीन्स उतनी ज़्यादा उनकी टक्करें होंगी, मीन्स उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अब अगला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर एक इजी पॉइंट है, बहुत इजी है कि अगर हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंस में अगर तो वो सब्सटेंस कंडक्टर नेचर का है, कंडक्टिंग नेचर का है, तो रेजिस्टेंस कम होगी। नेचर ऑफ सब्सटेंस में आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अगर तो कोई सब्सटेंस कंडक्टिंग नेचर का है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। अगर कोई सब्सटेंस इंसुलेटिंग नेचर का इंसुलेटर है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होगी, कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होगी, इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये नेचर ऑफ सब्सटेंस में आ गया। तो अब हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस टॉपिक भी हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आने वाला है ओम्स लॉ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम अगला टॉपिक करेंगे ओम्स लॉ। ये 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने ये ओम्स लॉ दिया। ओम्स लॉ 1826 में जॉर्ज साइमन ओम हैज़ गिवन दिस लॉ। अब ये लॉ रिलेशनशिप है किसमें, हमने कौन सी टर्म्स पढ़ी, आई पढ़ा करंट यानी, वी पढ़ा, दूसरी टर्म हमने ये पढ़ी आज, और तीसरी चीज़ हमने टर्म कौन सी पढ़ी, आर। ये बेसिकली इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को हम लिखेंगे कैसे ज़रा ध्यान से देखना। सर जॉर्ज साइमन ओम ने देखा, उसने ये कंक्लूड करा अपने एक्सपेरिमेंट से, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। Potential difference is V, current is I, potential difference is directly proportional to current provided physical conditions such as temperature of the conductor remains constant. As it is आपको याद रखनी पड़ेगी,
जॉर्ज साइमन ओम ने एक्सपेरिमेंट्स करे और उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में आई वी एंड आर के बीच में रिलेशनशिप निकाला और उसने देखा पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमारे पास इसको आगे जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपको पता है कांस्टेंट लगता है, और इस फॉर्मूला में कांस्टेंट क्या लग रहा है, आर। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, सो V इज इक्वल टू आर आई हो गया। जब भी हमने न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करने ना, हमने ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, बहुत जगह यूज़ होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, जॉर्ज साइमन ओम के ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हमारे पास जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है इक्वल टू का साइन आ जाता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या लग जाता है, आर। तो V इज इक्वल टू आर आई आ गया, और हमारे न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होने वाला है। आपको जब भी एग्ज़ाम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ आ जाए तो आपने वी आई ग्राफ बनाना, मीन्स आप वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे करंट लिखेंगे। मीन्स ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप करंट लिखेंगे और इसको वी आई ग्राफ कहेंगे। और जैसे आपको पता ही है कि ओम्स लॉ में वी एंड आई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। सपोज जब पोटेंशियल डिफरेंस 5 था, करंट कितना फ्लो कर रहा था, 10, फिर 10, फिर ये कितना फ्लो कर रहा है, 15, फिर 20, फिर ये कितना फ्लो कर रहा है, 25। तो मैंने अगर इनको प्लॉट करूँ यहाँ पे, मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं ग्राफिकली इन ए बी एंड सी पॉइंट्स को प्लॉट करूँगा तो मेरे पास ग्राफ ऐसा बनेगा। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 5,10, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 10,15, सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 20,25। तो तो अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी एंड सी, और मैंने आपको बोला था कि स्लोप, किसी भी लाइन की स्लोप को हम, इस लाइन की स्लोप को रेजिस्टेंस कहते हैं। आप याद रखिएगा, वी एंड आई ग्राफ बनाना है जब भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ पूछ ली जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप वाई एक्सिस पे और करंट एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और ये पॉइंट्स जो उनसे हैं मेरे पास जैसे ऐसे लेने हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रूफ हो रहा हो। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी साथ में बढ़ रहा है, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जोन सी ये पॉइंट्स प्लॉट करके आए, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और स्लोप का सिंबल मैथ्स में होता है m। स्ट्रेट लाइन की स्लोप को रेजिस्टेंस, एंड स्लोप का सिंबल मैथमेटिक्स में m होता है, एंड इस स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 मीन्स यहाँ पे मैंने इसको x1 ले लिया, y1 ले लिया, x2 ले लिया, y2 ले लिया। तो y2 क्या हो गया 15, y1 क्या हो गया 10, x2 क्या हो गया 10, एंड x1 क्या हो गया 5। सो मेरे पास यहाँ पे 5/5 जो किसके इक्वल आया 1, मेरे पास m1 आया, एंड मैंने आपको बोला इस लाइन की स्लोप को रेजिस्टेंस कहते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आई 1 ओम। रेजिस्टेंस इज 1 ओम हेयर। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ आपने याद रख लेनी है। अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ, और याद रखना कि यहाँ पे V यहाँ पे I होना चाहिए। अगर यहाँ पे I हो जाए और यहाँ पे V हो जाए तो फिर उसकी स्लोप को हम कंडक्टेंस कहेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो ध्यान से याद रखना, जब भी ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो आप कभी भी इधर V नहीं लिख सकते और यहाँ पे I नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो जो सी लाइन होगी बीच में उसकी स्लोप को हम कंडक्टेंस कहेंगे, फिर उसकी स्लोप को हम रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो अब हम अगला टॉपिक करते हैं, कंडक्टेंस एंड 1 ओम की डेफिनेशन। आपने अभी पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला यही लर्न करा अभी, और ये आपको बहुत जगह यूज़ होगा। और अगर आपको पेपर में आ जाए डिफाइन 1 ओम, मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था कि हम ओम्स लॉ के बाद ही 1 ओम की डेफिनेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को अकेला छोड़ूँ, I उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मेरे पास होता है 1 वोल्ट मींस SI यूनिट, और करंट की होती है एम्पेयर,
और रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है 1 ओम। रट्टा मत मारिएगा, समझिएगा। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, यहाँ से रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम if current of 1 ampere passes through conductor on applying the potential difference of 1 volt. Resistance is said to be 1 ohm if the current of 1 ampere passes through the conductor on applying the potential difference of 1 volt. So ये 1 ohm की definition हो गई है, ये भी काफ़ी important है CBSE के point of view से। तो आपने resistance पढ़ा, obstruction offer to the flow of current, that is called resistance। resistance की SI unit 1 ohm, and अगर 1 ohm की definition exam में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, resistance is said to be 1 ohm if on applying the potential difference of 1 volt current of 1 ampere passes through the conductor। So एक ये चीज़ होगी। अब कंडक्टेंस याद रखना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की हमने यूनिट क्या करी, रेजिस्टेंस की यूनिट वी हैव डन ओम ना, OHM ओम, उसका सिंबल ओमेगा। और कंडक्टेंस की यूनिट, कंडक्टेंस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड इसकी SI यूनिट क्या होगी, MHO, मीन्स इसका उल्टा चल पड़े हम, ओम का उल्टा MHO, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर -1। ये हमारा ओम्स लॉ था जिसमें हमने VIR का रिलेशनशिप पढ़ा। फिर आपने ये याद रखना है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। फिर आप ये अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ की करेंगे, Y एक्सिस पे V होगा एंड X एक्सिस पे I होगा। यहाँ पे कभी भी गलती से I और यहाँ पे V मत लिख दीजिएगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद रेजिस्टिविटी। आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फर्स्ट रिलेशनशिप ये पढ़ा। फिर आपने सेकंड रिलेशनशिप क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऑन कंबाइनिंग, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमारे पास आया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होगा, एक कांस्टेंट दैट इज P L/A। तो अब रेजिस्टिविटी इज दिस P, यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी है। और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी और रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी, ज़रा ध्यान से देखना। हमने ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। जब ये वाला सिंबल हटता है तो कांस्टेंट लगता है, और इस सिचुएशन में कांस्टेंट क्या होगा, रेजिस्टिविटी, उसका सिंबल ये P होता है। तो अब हमारे पास रेजिस्टिविटी की SI यूनिट एंड इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसी यही फॉर्मूला से आप डिराइव करेंगे। अगर तो आप बुक में रट्टा मारेंगे वो कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही आपके दिमाग में रहेगा, समझ के करिएगा। ये फॉर्मूला आपने डिराइव करा, उसके बाद रेजिस्टिविटी ये रही, हम कैसे लिखेंगे, रेजिस्टिविटी इज़, ये इक्वल टू का साइन है, रेजिस्टिविटी इज़ रेजिस्टेंस, ये R इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज़ रेजिस्टेंस ऑफ वायर of unit length and unit area of cross section। हमने ऐसे ही डिराइव करा, रेजिस्टिविटी ये रही रेजिस्टिविटी, ये सिंबल रेजिस्टिविटी का, एंड इक्वल टू का साइन है, और हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी इक्वल टू मीन्स इज, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप अपनी कॉपी में लिख लेना। और उसके बाद हमारे पास रेजिस्टिविटी को हम SI यूनिट को डिराइव करने वाले हैं। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट जब भी हमने डिराइव करनी है तो हम रेजिस्टिविटी को अकेला छोड़ेंगे, ये एरिया वाला A उधर चला गया, लेंथ नीचे चले गई, और इधर हमारे पास रेजिस्टिविटी रह गई है। अब हम लिखेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट दैट इज़ ओम, एरिया की यूनिट SI यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट दैट इज़ मीटर, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी।
और यहाँ से मीटर के साथ ये मीटर स्क्वायर कट गया, मीन्स मेरे पास रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट इज़ ओम मीटर। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट इज़ ओम मीटर। सो हमारे पास ये टॉपिक हो गया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी इज एसआई यूनिट। एंड याद रखना रेजिस्टिविटी हर हर कंडक्टर की इक्वल रहती है। मीन्स अगर कॉपर है कॉपर की कांस्टेंट रहेगी, अगर सिल्वर है सिल्वर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। अब इसके बेस्ड एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, सो वो न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा। एंड एक और चीज़, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी क्या है? आपने रेजिस्टेंस का तो पढ़ा था, जो बच्चे एग्जाम्स में गलती करते हैं ना, रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। पर रेजिस्टिविटी लेंथ पे एंड एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। सो रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ, रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन एरिया, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अप ओनली ऑन दीज 2 फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। ये डिफरेंस में लिख सकते हैं आप रेजिस्टेंस के और रेजिस्टिविटी का। अगर एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछ ले, एक पॉइंट आप डेफिनेशन लिख देंगे, एक पॉइंट उनकी यूनिट्स ऐसे यूनिट्स क्या वो लिख देंगे, फिर एक पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। सो मैंने आपको तभी बोला था कि रेजिस्टिविटी अगर कोई कॉपर की वायर बहुत लंबी भी है और कॉपर की वायर छोटी है तो दोनों की रेजिस्टिविटी बराबर होगी, पर रेजिस्टेंस में फ़र्क होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करता है। एक आपके पास कॉपर वायर है, एक लंबी वाली कॉपर वायर है, एक छोटी वाली कॉपर वायर है। लंबी वाली वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, छोटी वाली वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, बट दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, याद रखना। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफ़ी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो रेजिस्टिविटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स में आपने कैसे क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो ज़रा ध्यान से देखना। सो रेजिस्टिविटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है, इफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम, या फिर हम ले लेते हैं एग्जांपल 8 ओम, what will be new resistance if length of the wire is doubled? What will be new resistance if length of wire is doubled? If length of wire is doubled, so original resistance 8 ohm है, what will be new resistance if length of wire is doubled? So आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यही वाला यूज़ होगा, R इज इक्वल टू पी एल ओवर ए। अब ये कैसे यूज़ होगा, ये कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको एक दिखाने लगा हूँ इसके लिए, एक वायर, ये जैसे एक वायर है, सपोज ये ओरिजिनल वायर ऐसी है, फोल्डेड भी हो सकती है। तो अगर ये वायर ऐसी है, तो अगर उन्होंने बोला इफ़ लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल्ड, मीन्स ओरिजिनली ये वायर ऐसी थी, इसको मैंने ऐसे करा, इसकी लेंथ डबल हो गई। ओरिजिनली वायर ये ऐसी थी, ये ओरिजिनल वायर है, उन्होंने बोला इट्स डबल्ड, मीन्स लेंथ इज़ डबल्ड, मीन्स ये वायर को ऐसे खोल दिया गया। तो लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल्ड, तो आपने देखा जब ओरिजिनली ऐसी थी वायर तो ये वायर थिक थी, है ना, ये देखिए कितनी थिक थी। अब जब ये हमने खोली तो ये वायर की थिकनेस कम हो गई, तो मीन्स लेंथ डबल हो गई, तो एरिया हाफ हो गया। सो पहले ओरिजिनली रेजिस्टेंस 8 ओम थी, रेजिस्टिविटी पी एल ओवर ए। अब रेजिस्टेंस नई वाली हमारे को पता नहीं है, और रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहती है। मैंने आपको बोला है कि लेंथ या एरिया बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। पर हमारी लेंथ डबल हुई है, मैंने आपको अभी बताया भी था
तो उसी का एरिया क्या हो गया, हाफ, मीन्स लेंथ यहाँ पे डबल हो गई, एरिया हाफ हो गया। तो मेरे पास आर डैश किसके इक्वल आया, आर डैश मीन्स नई रेजिस्टेंस, ये 2 ऊपर चले जाएगा, पी 4L अपॉन ए। मेरे को आर डैश निकालना है, ये वाला आर डैश। तो ये आर डैश कैसे निकलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँगा। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके मेरे पास आंसर आ जाएगा, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस आर डैश मेरे पास निकल जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करने वाला हूँ। इक्वेशन 1 विल बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। सो 8 is equal to P L upon A divided by R dash P 4L upon A। यहाँ से P के साथ P कट हो गया, यहाँ पे A के साथ A कट हो गया, L के साथ L कट हो गया। हमारे पास क्या रह गया, 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन R डैश। तो अब हमारे पास 8 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 रह गया। तो मेरे पास नई रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, 32 ओम। अब ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन था, जिसमें वर्ड क्या लिखा, इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। अब टाइप 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टाइप 1 क्वेश्चन में क्या था, लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। अब टाइप 2 क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब टाइप 2 क्वेश्चन है, ओरिजिनली रेजिस्टेंस आपको थी 8 ओम एंड आपको बोला फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस if length of wire is doubled on itself। अगर लेंथ हमारी डबल्ड ऑन इटसेल्फ हो जाए, डबल्ड ऑन इटसेल्फ और अकेला डबल्ड में क्या फ़र्क है यार, ध्यान से देखिए। वायर इज़ डबल्ड ऑन इटसेल्फ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा था, लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल्ड। तो डबल्ड ऑन इटसेल्फ मीन्स ओरिजिनली वायर ऐसी थी, हमने ऐसे फोल्ड करके वायर को ऐसे बना दिया। ये डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ओरिजिनली वायर ऐसी थी, हमने क्या करा, इसको फोल्ड करा वायर को और हमने ऐसे बना दिया वायर को, दैट इज़ डबल्ड ऑन इटसेल्फ। ओरिजिनली वायर ऐसी थी, हमने इसको डबल करा और वायर मेरी ऐसे बन गई। देखो अब नई थिकनेस वायर ज़्यादा थिक हो गई ना, मीन्स लेंथ हाफ हो गई, वायर की थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस बढ़ गई मीन्स एरिया बढ़ गया। मीन्स पहले जब मेरे पास आर 8 ओम थी तो फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू पी एल ओवर ए एंड रेजिस्टेंस 8 ओम थी और पी एल ओवर ए हमने ऐसे लिख दिया। अब वो नई रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे को बोल रहा है, इतना बोल दिया कि लेंथ हमारी पहले से क्या हो गई है, हाफ हो गई है। मीन्स क्योंकि यहाँ पे बोला डबल ऑन इटसेल्फ, मीन्स वायर ओरिजिनली ऐसी थी, डबल ऑन इटसेल्फ का मतलब हमने वायर को ऐसे कर दिया। डबल ऑन इटसेल्फ का मतलब ये है कि हमने वायर को ऐसे कर दिया, सो इट्स बीइंग डबल्ड ऑन इटसेल्फ। तो वायर को डबल ऑन इटसेल्फ करा तो लेंथ हाफ हो गई, एरिया दुगना हो गया, एरिया इज डबल्ड। तो मेरे पास अब क्या होगा, R इज इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाई 4A। अब ये सेकेंड इक्वेशन बन गई है, नई रेजिस्टेंस निकालनी है, हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। सो लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड में क्या था कि वायर को दुगना लंबा खींचा है, और डबल ऑन इटसेल्फ का मतलब क्या है, वायर को हमने फोल्ड करा है एक के ऊपर। तो इसमें हमने वायर को खोला था डबल ऑन इटसेल्फ में, और सॉरी लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड में, डबल जब करा तो मीन्स हमने क्या करा, ओरिजिनली वायर ऐसी थी जब लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड था, तो हमने क्या करा, इस वायर को खोल दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और जब वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ है, इसका मतलब क्या, ओरिजिनली वायर ऐसी थी, हमने वायर को ऐसे कर दिया डबल ऑन इटसेल्फ। मीन्स लेंथ तो हाफ हुई और इसका एरिया डबल हो गया क्योंकि थिकनेस डबल हो गई है।
तो डबल्ड मीन्स वायर ओरिजिनली ऐसी थी और हमने इसको ऐसे दुगना लंबा कर दिया, और डबल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब है कि ओरिजिनली वायर ऐसी थी और हमने वायर को ऐसा बना दिया, मीन्स ऐसे फोल्ड कर दिया, इसीलिए वायर डबल्ड ऑन इटसेल्फ हो गई है। तो अब हम नई रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिर से डिवाइड करेंगे। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, सो 8 इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, यहाँ पे आर डैश लिखा, इज इक्वल टू पी एल अपॉन 4a। पी के साथ पी कट, एल के साथ एल कट, एरिया के साथ एरिया, यहाँ पे आर डैश है सॉरी। 8 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे सबसे ऊपर चल जाएगा क्या 4, क्योंकि 1 अपॉन 1/4 है, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से आर डैश किसके इक्वल आया, 8 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 2 ओम। नई रेजिस्टेंस 2 ओम आ गई है। सो मेरे पास ये ऐसे आया। फिर इसको जब हमने सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन हमारा ये भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ कंडक्टर अगला टॉपिक है चैप्टर में। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक होगा अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर। सीरीज़ और पैरेलल में हम अरेंज कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।